आज के डेट में in any field of survival, mobile is also very essential. But if it is excess, जैसे कि salt life के survival के लिए it is very important. If you don't take it for few days, you may die. So mobile similarly is very important. But if you take it in excess, मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें कुछ यंगस्टर ने एक ऐसी शर्त लगाई थी कि भाई 1 लीटर पानी में आधा किलो नमक मिलाकर जो भी वो बनेगा वो पूरा 1 लीटर जो पिएगा वो कुछ तो भी जीत जाएगा. And the boy who consumed this really in the fit of that excitement, आधे घंटे के अंदर he died because of cardiac arrest. So it is such a dangerous. नमक घर में रहने वाली, daily you are eating that pinch of salt daily, लेकिन जब आपने एक्सेस में कंज्यूम करने की कोशिश की तो इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोबाइल इज दैट थिंग. जब आप मॉडरेशन में लोगे, जब आप कंट्रोल में यूज करोगे तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल एंड वेरी यूजफुल. बट व्हेन यू वुड गो really out of control, so it may kill you not literally, but it has started killing people literally. किसने ब्लू व्हेल गेम का नाम सुना है? किसी ने सुना है? या सुना है. लास्ट ईयर ये हुआ था और we had one of this Hingengarten or somewhere some guy died playing that game, and abhi recently we had some PUBG deaths. So mobile has started proving that it can kill also. Mobile is a wonderful device. Blue whale. Yes. Mobile is a wonderful device, very useful thing. But when it will go out of control, then it will really trouble you harder. So art of controlling. अभी आप बोलोगे कि क्यों ये जो पिक्चर है ये इसको देखा क्या? जब मैंने देखा तो I was like crazy कि yes, what a creativity. And this is what is happening. मतलब there had been reports where people who are addicted to certain games or social media kind of thing, they happen to मतलब वो रात भर इन डार्कनेस मोबाइल देखती रही. She couldn't just control watching that mobile, and in that night of whole night she watched it, and in the morning she couldn't see because it has damaged her eyes. So ये स्थिति है कि आप चाह रहे हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो. आप चाहते हो कि नहीं, इट इज हार्मफुल, यू कांट सी इट एनीमोर. आपका हाथ दुख रहा है, आपका गर्दन दुख रहा है, आपका सब दुख रहा है, लेकिन आपकी आंखें दुख रही है, यू आर फीलिंग स्लीपी, हंग्री, आपको सुसु पोटी आ रही है, लेकिन आपको लगता नहीं थोड़ा सा और खेल लूं, नहीं मैं थोड़ा सा और देख लूं, नहीं मैं कोई रिप्लाई आया कि देख लूं. सो ये जो एक लालच या एडिक्टिव इसका टेंडेंसी है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस. सो आप अगर उस जोन में जा रहे हैं कि आपको पता है कि आप मोबाइल आपको दिख रहा है कि यू शुड लीव इट एंड यू आर नॉट एबल टू लीव इट, देन इट इज really alarming situation. India has banned many China apps. Yes, Samyak, we will discuss several points at the last. Anything, any topic, any question, any issues, if you want to speak, we'll speak it in the last. We are having a flow of certain points to be discussed. So everybody is able to see the screen? Yes, ma'am. Everybody is able to see the video? चलो. So अब ये पता चल रहा है why it is important, क्योंकि आपने जब सोचना शुरू नहीं किया कि इसको रोकना है, इसको कंट्रोल में करना है, it may go out of control. और I have told you few things, few incidences, few real life incidences जब मोबाइल हैज स्टार्टेड किलिंग पीपल. अभी तो कंटिन्यूअसली मतलब लास्ट 1 महीने से आई हैव सीन मे बी 3 or 4 इंस्टेंसेस जहां पर गांव के, सिटी के, हिंगना के ऐसे इंस्टेंसेस मैंने देखे जब पेरेंट ने या माँ ने बोल दिया कि भी मोबाइल इज टू मच, अभी यू शुड स्टॉप वाचिंग दैट मोबाइल, या मोबाइल माँ ने दिया नहीं तो 11 साल 12 साल 13 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया. So can you imagine what mobile is doing with all of us कि हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, ऐसा लगेगा कि अरे मोबाइल नहीं तो भी हम मर जाएंगे. So this is really daily thing.
kindly mute your mobile, mute your apps, please. So it is the mobile thing has taken really an ugly turn. Okay, so अब आप देखेंगे कि अगली टर्न यानी कैसा अगली टर्न है. 2012 में an average adult in worldwide was spending its 90 minutes on social media. आज 2019 में, 2020 भी हुआ नहीं तो उसके स्टैटिस्टिक्स आए नहीं है, तो 2019 में we can see the statistics is as much as 153 minutes. मतलब more than 2-2.5 घंटा people are spending only on social media. Leave about the mails, messages, callings and other stuff. ये सिर्फ social media का time spent है. So it is going terribly high. उसके बाद में you will see lockdown में what had happened. Lockdown में you will see there is a significant thing happened where watching online videos and watching TV shows and movies has gone up at to many percentage. Many percentage मतलब 60% से we the people, and that is Indian crowd statistics. All can see that has raised 60%. That then 57% there was rise in watching TV shows and mobile on movies on mobile, watching linear TV 48%, engaging in social media 48%, chatting and texting 48%, and video games 11%. So these are drastically very high figures of screen exposure that Indian crowd has shown, citing a very golden opportunity of lockdown. Now you will see how अब इतना मोबाइल इतना सिग्निफिकेंट टाइम कंज्यूमिंग आ गया है कि इट हैज रेटेड टू थर्ड मोस्ट टाइम स्पेंड थिंग इन लाइफ. ऐसे बोलते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा टाइम सोते हुए गुजारता है. एक एवरेज 60 to 80 years old human spends 26 साल 26 years and 5 months while sleeping, 8 years 4 months while watching TV, and now the third place has come as 6 years and 8 months watching social media, specifically on mobile. So this is very terrible कि हमने जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त, सबसे मैक्सिमम वक्त एक प्रोडक्टिविटी में लगाना चाहिए, सो थर्ड टॉप मोस्ट टाइम जो जा रहा है वो मोबाइल में जा रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टीवी वॉचिंग टाइम ऑल्सो. सो दैट द फिगर्स आर रियली टेरिबल. अभी आप देखोगे कि सोशल मीडिया में जो टाइम स्पेंड हो रहा है, फेसबुक पे 1 साल, यूट्यूब पे 1 साल, ऑलमोस्ट 2 साल, एंड स्नैपचैट एंड इंस्टा पर 8 महीने. So these are the terrible time that of our precious life we are spending into what we call mobile. So क्या है, what is happening, what has happened with us? We are caged. Can you see that we are caged? We are caged in the mobile और हमें पता ही नहीं चला. हमें लगा मोबाइल को हमने पकड़ा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मोबाइल ने हमको पकड़ के रखा है. So आपको पता है, how many of you know that there are age restrictions that are required to prepare an account in any of the platforms? आप मेल में करो, आप फेसबुक में करो, व्हाट्सएप में करो. So there is an age restriction. How many of you know that? Yeah, I know that. Ma'am 80. Me know 80 that. years. लेकिन Samyak, I see most of the 70. time you on the TV. This mobile and various WhatsApp, you are there. So below 18 years you are not supposed to be actively using mobile. Steve Jobs जिसने Apple दिया, Bill Gates जिसने Microsoft दिया, वो खुद अपने बच्चों को 14 साल तक के किसी भी तरह का डिवाइस या गैजेट देने के अगेंस्ट है. अगेंस्ट मतलब नो मीन्स नो गैजेट्स व्हाटसोएवर. और आज हमें भूषण लगता है हमारा बच्चा मोबाइल वेरी स्मूथली ही इज ऑपरेटिंग, एंड वी आर लाइक वाओ माय किड इज सो स्मार्ट. बट हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जो सीन दिख रहा है ना, हमें वो सीन ये दिख रहा है कि पीपल are sitting on one table and not talking and just being into mobile. What kind of socialization we are doing on mobile? Virtual socialization. हम पूरी तरह से virtual reality में रह रहे हैं, जी रहे हैं और उसे ही सच समझ रहे हैं. So this is really going
to an ugly turn. क्या हो रहा है? We are exposed to lots of radiation. आप जितने बच्चे हो, जितने कम उम्र में इन डिवाइसेस के जितने पास रह रहे हो, रहने वाले हो, you are exposed to very very terrible kind of radiation which you are not supposed to at this point of time. बच्चों की बात कर रही हूँ. अगर आप टीनेज में जाओगे, you will see that you are terrified to, you know, not able to focus on your studies, rather you are just thinking कि मैंने फेसबुक पे एक फोटो डाली यार, पता नहीं कितने लाइक आए, उसने एक्स लड़की ने लाइक किया कि नहीं किया मेरा फोटो. सो ये एक जुनून है जो आ रहा है, और इसीलिए बिकॉज ये चीजें ही बनी है कि आपको लत लग जाए या आप इसमें ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे. इसीलिए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 18 साल के नीचे आप वोट नहीं कर सकते, 18 साल के नीचे आप शादी नहीं कर सकते, 18 साल के नीचे आप किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते लीगली. तो इसका मतलब व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज के आप में वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ये सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं होता है. दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउड टू go into the activities where which you can't handle, and आपका developing brain में बहुत सारा restrictive रहता है. Basically TV watching and mobile exposures or anything, you know आपको लगता है कि हम डिस्कवरी देख रहे हैं तो हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है. यस, मिल रहा है, लेकिन दैट इज अ पैसिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग जितनी आप ब्रेन को देते हैं बचपन में, जितनी एक्टिव लर्निंग करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, बेसिकली यू आर वर्किंग ओवर समथिंग टू सी. आपने एक वीडियो देखा कि कैसे प्लांटर आपने सीड्स डाली और कैसे प्लांट ऊपर आ गया, और उसके बजाय जब आपने खुद करके देखा तो दैट वुड बी अ ह्यूज लर्निंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग का डिफरेंस. एंड मोबाइल दैट इज बीइंग, प्लीज मिस्टर बोरकर स्टॉप स्क्रिबलिंग द स्क्रीन, दैट इज वेरी बैड. सो inappropriate behavior, yahi mobile uses which is going really uncontrollable is giving you inappropriate behavior and exposures. सम्यक और प्रथमेश जो आप लोग बैठे हो ये मोबाइल का वेबिनार देखते हुए, basically when I saw the list, most of parents had been participating although they have written their names, and I expected that parents should also join in this webinar कि पेरेंट्स ने भी ये देखना है कि what it can do with your child. कि बच्चा पढ़ाई छोड़कर it is getting more and more into mobile, and also giving rise to inappropriate behaviors and exposure which is not right for his given age. This is what is the scene. This is what is the scene that we might see after lockdown, when people have forgotten to play in the garden, mixing with each other, coming closer to each other and talking actually, but preferring to speak with each other over the device or mobile or some media. So this is really bad. And what the worst thing that is happening nowadays is parents आते हैं बोलते हैं हमारा बच्चा वो उससे फोन छीन लो तो रोने लगता है या अलग तरह से बिहेव करने लगता है. सो दीज आर नाउ बिकम अ न्यू ब्लैकमेलिंग गैजेट्स फॉर किड्स आल्सो, कि वो अब मोबाइल पाने के लिए हर तरह की हरकतें करने लगे हैं, और अगर उनसे मोबाइल छीन जाए तो दे आर रियली गोइंग क्रेजी. सो दिस इज द पॉइंट. ये पेरेंट को बॉदर करता है, लेकिन मेरा पहला सवाल होता है पेरेंट से, भाई बच्चा को से मोबाइल छीन लो तो वो रोता है, तो मैंने बोला दिया किसने था, कौन दिया? So in the first place only you have a very restricted, you should allow child very restrictively to access, very restricted access to the मोबाइल. अगर आपने ये पहले से मेंटेन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो विड्रॉल इफेक्ट आने लग रहे हैं. जैसे वो बड़े होते हैं वहां पर, अभी जैसे स्कूल में बुलिंग होती है, 4 फ्रेंड मिलकर एक बंदे को इतना हैरास करते हैं, चिढ़ाते हैं, ये सब चीजें होती है. सो ऐसा ही अब सोशल मीडिया में भी होने लगेगा, वेयर साइबर बुलिंग एक नया चीज है जिससे परेशान होकर कई बार अलग अलग यंगस्टर्स ने अलग अलग इंस्टेंसेस में आई हैव बीन हियरिंग के सुसाइड भी करने लगे हैं. सो
I hope you are with me. This is what you have learned. पैसा चोरी हो जाता है, फेसबुक से कोई फ्रेंड बनकर किसी को डील दिलाने के चक्कर में पैसा ले लेता है, इमोशनल चीटिंग होती है आजकल, फेसबुक और व्हाट्सएप के प्यार होने लगे हैं, यू डोंट नो द पर्सन, एक अच्छा हीरो का फोटो उसने लगा दिया और आपको लग रहा है वही है वो, और फिर पता चलता है कि जेठालाल निकला. So this kind of emotional cheatings are happening. So इसके जो ये सारे bad effects are everyone has knowing it, everyone has now started experiencing it, but घर में अगर कहीं कोने में आपको धुआं दिखता है या चिंगारी दिखती है तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए, या फिर पहले ही केयर लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो ही ना. So what you are supposed to do is you have to stop at once. लेकिन अगर आप में से किसी को खुद पेरेंट्स यहाँ पर काफी मात्रा में, मिस्टर रेडमी प्लीज म्यूट योर मोबाइल. सो अगर आपका खुद पेरेंट्स है, अगर आपका बच्चा या पेरेंट खुद को भी लग रहा है कि भाई वो फोन से चलो संडे के दिन टेस्ट करिए आप, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में रात को सोने के भी पहले, या फिर आज कितने लोग ये चैलेंज लेते हैं. आई वुड लाइक टू नो इन द ग्रुप कि कितने लोगों ने सच में ये टेस्ट पास किया है कि आप मोबाइल एडिक्ट है कि नहीं है. इसका एक डायग्नोसिस का टेस्ट का चैलेंज देती हूँ. दीपाली, आई होप यू आर लिसनिंग. सो चलो एक चैलेंज देती हूँ कि अब ये सेशन 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद में I will appeal all of you to not to touch your phone at all. कितने लोग इस चैलेंज में इन है, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? Me. और चैलेंज यानी दिल से सच्चा चैलेंज है, कोई आपके घर में देखने नहीं आएगा. If it is a challenge, then I would take it. चलो, I want because of mobile, birds are also dying. I want everyone to take this challenge. But only for today. Yes. Only for today. Mr. Sid is saying only for today, not for tomorrow. चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट डायग्नोस तो हो जाएगा कि आप सच में मोबाइल एडिक्ट तो नहीं हो रहे हैं. सो चलो ये चैलेंज है कि आज सब लोग इस सेशन के बाद में फोन को हाथ नहीं लगाएंगे. इसका मतलब टीवी में नहीं घुस जाएंगे. There is a nice weather going on. Just go out, play, have some rain dance, talk to your family, cook something interesting, eat, play, enjoy so many things that are there. I need not to tell everything. But मोबाइल को हाथ नहीं लगाने का. चलो, all are in. In, yeah. Assume all are in. Okay. Yes. चलो. I want to say something. अब अगर आपने 5 बजे के बाद में, ये पहला है कि enable to stay away from mobile. उसके बाद कई बार कल से और कुछ चीजें चेक करना कि आप दिन भर में बेवजह कितने बार फोन देखते हैं. ऐसी क्या आया मैंने फोटो डाली थी, कितना लाइक आया, मेरा स्टेटस किसने देखा. So parents some youngster may be there, so I want you to just check out कि आप कितनी बार फोन देखते हैं जब आपको सच में जरूरत नहीं होती है. और उसके बाद में बच्चों में आप अपने ऑब्जर्व करिए, जो भी यंग वंस हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि कितने बार आपके बच्चे फोन की शर्त पर पढ़ाई करते हैं. फोन की मतलब फोन निशिल ना तरमी चुप बसीन, मतलब फोन, मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे जानबूझ के, मम्मी चलो ना बोर हो रहा है, मम्मी चलो ना बोर हो रहा है. और जैसे उनको फोन दे दो, बस दे वांटेड दैट ओनली कि किसी तरह से फोन मिल जाए. और जैसे उनको फोन मिल जाता है, अभी फिर वो 2 घंटा भी आएंगे नहीं खुद होके देखने के लिए कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है. दे आर ओके विद द वंस दे हैव गॉट द फोन. सो ये मैनिपुलेशन इज डे इन एंड डे आउट. मैं खुद देखती हूँ, आप सब लोग भी देखते होंगे. सो जस्ट चेक आउट कि अगर आपका बच्चा भी फोन के बहाने पर
तू मला फोन दे, मग मी ना रडणार नाही, तू मला फोन दे. छोटे बच्चे 1 साल के ऐसे रोते ऐसा लगता बाप रे बेचारे क्या हो गया बेचारों को, फोन देते ही ऐसे चुप हो जाते जैसे कभी रोए ही नहीं. So just check out कि this kind of behavioral habit which is only appeased by phone. तो समझ लो 2 साल का 1 साल का भी बच्चा इफेक्टिवली फोन के लिए एडिक्ट हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस. सो आपको चेक करना है अपने आप के और अपने आजू बाजू वाले के कंपैरिजन में कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. और अगर आपने छीन लिया फोन तो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, या आप खुद बिना फोन के कैसे रह पा रहे, वो स्पेसिफिकली बच्चों में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रहेगा. बड़े लोग तो अपना अरे भाई हमको काम होता है, इंपॉर्टेंट फोन आता है, हम कैसे फोन से दूर रहे. सो एवरी एल्डर वन विल हैव ऑलवेज गुड रीजन टू नॉट टू स्टे अवे फ्रॉम फोन. और आप देखेंगे कि कई बार बच्चे हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग loner behavior. They don't want to be with anyone, they want to be alone, they want to sit with their phone, they don't want to go out, play and socialize. This is something really harmful that is happening in the psychological development of any child, that kids are adopting more and more of asocial and loner बिहेवियर. दोस्त आते बुलाने, नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को वीक लग रहा है, बट फोन देखने के लिए ही इज एवर एनर्जेटिक. सो ये अगर सब दिख रहा है आपको तो इट इज वेरी सीरियस सिचुएशन, एंड आपको बताने की जरूरत नहीं है व्हाट ऑल हार्म दिस मोबाइल कैन कॉज. आपके आईज, आपके पोस्चर्स, आपका इंटेलेक्ट, एवरीथिंग विल जस्ट बी स्टोलन. सो अभी आपको ये समझने की कोशिश करना है कि कब कितना हो रहा है, व्हेन इज टू मच, और कब रुकना है. सो आपको ये जो मैंने लास्ट ये 4-5 में से एक भी साइन आपको ऑब्जर्वेशन में आता है अपने आप के, अपने बच्चों के, तो आपको समझ जाना है कि इट इज टू मच, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये अब हमें रोकना होगा. और मोबाइल से दूर रहने का एक ही तरीका है, लिटरली दूर रहने का. आप इधर हो, मोबाइल तो चौथी रूम में रखा है, तो ही आप उससे दूर रह सकते हैं. आपकी आंखों के सामने रखा है, वो तो ऐसा है कि कुत्ते के सामने हड्डी रखी है and you are expecting कि he'll stay away from it. So only one way कि you have to keep it out of sight. Mobile is something, the funda that really works, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो. If it is out of sight, then it may be out of mind if you're not addict. So out of sight रहने के बाद भी अगर ये out of mind नहीं रह पा रहा है, तो then there are chances कि you might be addict. You can get if either of these 5 or 6 symptoms or signs you find in yourself or someone else, please you need a good counselor to get rid of it. So this is the place when you should know that now it is a high time to control your mobile. So क्या रास्ते हैं अब इसको कंट्रोल अगर करना है, तो what all those ways to control? बहुत सिंपल है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला एक रास्ता मैंने बता ही दिया है. एक जॉइंट फैमिली रूल होना चाहिए. सारा परिवार, देखो अब यहाँ पे कुत्ते के भी हाथ में मोबाइल है, वो होगा कुछ दिनों बाद कुत्तों के लिए भी एक मोबाइल आएगा हड्डी शेप का. सो सब लोगों का यूनिफॉर्म रूल रहना चाहिए. हम बच्चों से छीन लेंगे फोन और हम खुद घुसे रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे भी मोबाइल से दूर रहे और बाहर जाके खेले, ऐसा नहीं होगा. ये ऐसा होगा कि आप सोना चाह रहे हो और चाह रहे कि बच्चे सुबह उठकर एक्सरसाइज करें. सो हमको पहले करना पड़ता है जो बिहेवियर हम चाहते कि हमारे बच्चे करें, तो फर्स्ट वी हैव टू डू इट. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट फैमिली रूल as far as mobile uses or screen uses are concerned. इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. 2-3 years back we have very small kids का एक समर कैंप हुआ था हमारे यहाँ पे, और उस समर कैंप में we had 50% तो बच्चे ऐसे आए हुए थे जिनको पेरेंट्स ने इस तरीके से भेजा था, मैडम प्लीज इनका मोबाइल छुड़ा दो, ये ब्रश करना सुबह जब से आंखें खुलती है और जब तक रात में खाना खाने का जैसी आंखें अपने आप बंद नहीं हो जाती है, ये लोग टीवी नहीं छोड़ते, ये लोग मोबाइल नहीं छोड़ते, आप कुछ भी करके इनका मोबाइल छुड़ा दो. एंड आई वाज लाइक अच्छा
तो फिर तो मुश्किल है, कैसे छूटेगा? तो मैंने बोला आपको मोबाइल और टीवी घर से गायब करना पड़ेगा। मैडम समर में कहाँ मोबाइल और टीवी गायब करेंगे, बच्चे बाहर जाएंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम। सो हमने क्या किया, हमने सिंपली उनको एक टाइम टेबल बनाने बोला कि भाई सुबह, अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, सुबह कितने बजे उठोगे, कितने बजे खाओगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे क्या करोगे। और उसमें सिर्फ एक ही शर्त रखी कि बस एक ही कंडीशन है कि आप लोग अपना स्क्रीन एक्सपोजर, लेट इट बी कंप्यूटर, लेट इट बी मोबाइल, लेट इट बी एनी डैम थिंग, आप अपना एक्सपोजर ओनली 1 आवर, 1 घंटे के ऊपर कोई भी तरह का स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होगा, यू हैव टू इंश्योर। एंड बच्चों ने वो टाइम टेबल बनाया एंड बिलीव मी, टिल द एंड, 10 दिन का समर कैंप था, टिल द एंड वी फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ किड्स के पेरेंट्स वर हैप्पी कि नाउ दे आर नॉट वाचिंग दैट मच ऑफ टीवी और स्क्रीन। सो देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट फैमिली रूल कि कब कौन कितना फोन यूज करेगा। और जो वर्किंग लोग हैं, जो आज फोन के साथ में घर में और बेडरूम में बैठ जाते हैं, उनको एक एडवाइस है कि अगर हो सके तो व्हेन ऑफिस इज आउट ऑफ साइट, कीप इट आउट ऑफ माइंड, जस्ट कीप योर फोन असाइड एंड टॉक टू योर फैमिली। पूरा दिन भर वो आपके साथ नहीं थे, नाउ यू हैव टू बी विद देम। सो lay down some very very strict family rules as far as mobile uses are concerned. बच्चा 16 साल से छोटा है, उसको उसका खुद का फोन भी नहीं देना है और अपना फोन भी नहीं देना है। और अगर देना भी पड़ रहा है, जैसे कि अभी ई स्कूल के बहाने फोन देना पड़ता है या स्क्रीन देनी पड़ती है, तो उसके बियॉन्ड आपको एक एंटरटेनमेंट का 30 मिनट्स के ऊपर में आपको फोन उसको नहीं देना है व्हाटसोएवर। कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ देम यूज द फोन मोर देन, क्योंकि अगर 2.5 घंटा क्लासेस चल रहे हैं तो 2.5 घंटा ऑलरेडी द बच्चा हैज बीन एक्सपोज्ड टू द स्क्रीन। और उसके बाद हम अगर 1 या 2 घंटा भी बच्चे ने फोन पे खेल लिया तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट 5 आवर्स, एंड 5 आवर्स इज अ बिग टाइम। उसके बाद उसको टीवी भी देखना है। सो प्लीज, बहुत डेंजरस लेवल पर स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है, इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लेवल तक पहुंच चुका है। सो जब तक आप सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे, बच्चों को रियलाइज नहीं कराएंगे, एंड यू हैव टू गिव द टाइम। आपको अब ये पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा एस्केप मैकेनिज्म हो गया है कि बच्चे को फोन दे दो, बच्चे से पीछा छूट जाता है और पेरेंट्स शांति से आराम कर सकते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि फोन, मतलब मैंने देखा पेरेंट्स बच्चे को एंटरटेन करना या बच्चे से बात करने के बजाय उसको फोन दे देते हैं ताकि पीछा छूट जाए, एंड बच्चा हैप्पी, पेरेंट हैप्पी, but the results are going to be very dangerous. So radiation is a very pathological and physical threat that mobile can impose. उसके बाद में you have to activate the screen timer. There is certain apps in the Play Store जहाँ पर screen timing, आपका screen कितने देर चला, आपने कितने देर फोन को देखा, वो रेड होता है। और आपको सरप्राइज्ड लगेगा कि दैट में, डोंट बी सरप्राइज कि 8 से 10 घंटा के अराउंड आए। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी सरप्राइज। आई एग्री कि काफी लोगों के काम जो है वो स्क्रीन लेवल पर ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अदरवाइज ऑल्सो 8-8 घंटा तक जाने में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं रहने वाला है। सो एक्टिवेट दैट स्क्रीन टाइमर। तो आपको शायद थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग और थोड़ी सी शर्म आए कि भाई नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम करना चाहिए। सो प्लीज एक्टिवेट स्क्रीन टाइमर टू हैव रियलिस्टिक अप्रोच और एटीट्यूड टुवर्ड्स मोबाइल यूजेस। और लास्टली सीधी बात है, एक्सक्यूज मी, यस, स्क्रीन टाइमिंग मैडम किस में, कौन से ऑप्शन में है? सेटिंग्स में? सेटिंग्स में नहीं है, ये ऐप है, कुछ ऐप्स है जो आपका स्क्रीन टाइम मेजर करते हैं कि आपने कितना टाइम स्क्रीन आपका चालू था। Okay, so we have to install it. Yeah, you have to install it. There are certain apps ratings. Ma'am, I have installed it now. Very good. Yeah, And now let me be see. watchful also how much you are using. तो स्क्रीन टाइमर एक्टिवेशन से आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लेवल तक आपका एक्सपोजर स्क्रीन में हो रहा है। ठीक This है? is good. This is good option. Yeah. Yes, you have to. उसके बाद में सीधी बात है, पेरेंट्स को लगता है बच्चा फोन छोड़ दे, लेकिन पेरेंट खुद भी तो छोड़े। जब तक पेरेंट नहीं छोड़ेगा बच्चा नहीं छोड़ेगा। सो
parents needs to control their own mobile first, then only child will control. So आप सुबह सोते हुए बच्चे को बाहर एक्सरसाइज करने जाने नहीं बोल सकते या उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको उठना पड़ेगा, तब वो आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी खाएंगे तो बच्चा हेल्दी खाएगा, आप एक्सरसाइज करेंगे बच्चा एक्सरसाइज करेगा, आप मोबाइल कंट्रोल में यूज करेंगे, आपके खुद के रूल्स रहेंगे, बच्चे के रूल्स रहेंगे, अगर आपके नहीं रहेंगे तो आपको कोई राइट्स भी नहीं है, बच्चा रेफर करेगा, वो आप तो देखते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल। अभी ऐसा है कि फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज अल्टीमेटली मोबाइल इज अ काइंड ऑफ एटम बम। एटम बम या एटॉमिक एनर्जी बोलेंगे जिसको, अगर इसका सही इस्तेमाल किया तो इट इज वेरी गुड। इफ मतलब जितना कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है उतना ही डिस्ट्रक्टिव। मोबाइल इज लाइक अ फायर, मोबाइल इज लाइक एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन इट इज अंडर कंट्रोल इट इज यूजफुल। पानी very important for us. Assam में पानी is killing. So anything in beyond uncontrolled will always kill or damage. So this is the rule. So mobile is also an energy, a very wonderful device. We are blessed with this. Use it, don't abuse it. So it is an abuse. जैसे खाना is very important for survival. But इतना ठूस ठूस के खा लिया, फट गए, मोटे हो के, so it is killing you. So anything and everything has to be in moderation, under control, तो ही ये आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए it will work. अब्यूज, जब आपने उसका यूज का लिमिट क्रॉस कर दिया, then it is abuse, then it will kill you. So I want you to have really watchful over these pointers, or specifically I want you to take a screenshot of these 5 things जो आपको बता सकते हैं कि भाई where do you stand as far as mobile uses are concerned. और स्क्रीन टाइमर देखिए आप, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में किसी भी वजह से स्क्रीन टाइमर should be more than 4 hours. 4 hours is a big number. So please 4 आवर्स मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, लेकिन आप देखोगे तो आपके 8-8, 10-10 घंटे एक्सपोजर्स आने वाले हैं। करेक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये क्या थ्रेट अपने लाइफ को, हर आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपका पोस्चर खराब हो जाएगा, आपका सोशलाइजेशन खराब हो जाएगा। आई मीन I don't know why people are not able to understand, because अभी क्या हो रहा है ना, it all started with a like a very slow poison जैसा इसका ग्रोथ हुआ है। पहले फोन आया, चलो टेलीफोन था अपना वायर वाला, हेलो चलो ठीक है, फिर धीरे से एक ऐसा डिवाइस आ गया कि चलो इसको लेके घूम सकते हैं जहाँ, वाओ व्हाट अ 3315 नोकिया, we have used it. So वो फोन आया कि चलो वाओ यार इमरजेंसीज के लिए हेलो चलो चलो, उससे और क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गेम के स्नेक वाला एंडलेस गेम, चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत हो सकता है। बढ़ते जब से एंड्रॉइड आया, देयर आर नो लिमिट्स, या iOS, देयर आर नो लिमिट्स दैट इट इज एबल टू डू, एंड वी आर चलो फोन स्मार्टफोन है, smarter it is getting, heavier and bigger it is getting, and shrinking our intellect, and we are getting stupider, more stupid and more foolish. So it is making us more foolish, because हम कैलकुलेट कर लेते क्या है करके, एक कैलकुलेशन करने के लिए हमें मोबाइल लगता है। So अंडरस्टैंड कि हमारा इंटेलेक्ट कहाँ पे डैमेज हो रहा है। So Steve Jobs, who himself was the founder of Apple, उसके he was a co-founder of some school, and उनकी स्कूलों में below 12 or 14 years, 13 years at least, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल देना है, हाथ में भी नहीं देना है, कुछ ऐसा देखने के लिए भी नहीं देना है। So ये ऐसा किया है जिसने खुद मोबाइल बनाया। हाँ, Apple is one of the renowned company, और he himself is saying mobile is so dangerous. वो अपने बच्चों को उससे दूर रखना चाहते हैं, और हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं वो लॉलीपॉप की तरह। So understand how it is capturing. तो मोबाइल की गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जो भी चीजें आ रही हैं, it is addictive.
ये बनाया ही गया है कि आपको उसकी लत लगे, आप उसमें इन्वॉल्व रहे, एंगेज रहे। अब आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, बिकॉज यू शुड नो कि आपको ये क्या डैमेजेस पहुंचा जा रहा है। अभी रेडिएशन इज वन ऑफ दोज डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स जिस पर एंडलेस डिस्कशंस चलते हैं कि इससे ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। अब वो डिस्कशंस कभी ऑथेंटिकेट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। सो समहाउ यू नो, बट पॉइंट अभी भी नहीं छूटा है कि रेडिएशन इज गिविंग राइज टू सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज। वो रामदेव बाबा डेमोन्स्ट्रेट्स, मेनी पीपल डेमोन्स्ट्रेट, और मुझे लगता है कि आप लोग भी डेमोन्स्ट्रेशन करिए। ऐसे करिए कि आप एक बंदे को फोन दीजिए एक हाथ में, और उसको ऐसे उसका हाथ ऐसा टाइट पकड़ने बोलिए सामने में, ऐसा हॉरिजॉन्टली, एंड समवन प्रेस इट डाउन, एंड यू विल सी कि वो उसका ओरिजिनल अगर ताकत है तो विदाउट मोबाइल आप चेक करिए कि इसका पावर कितना है, और उसके बाद उसके हाथ में फोन देकर लिटरली यू ट्राई टू चेक इट आउट एंड इट चेंजेस। आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज, क्योंकि ये हमने खुद डेमोन्स्ट्रेशन देखा है और किया भी है। सो प्लीज चेक आउट करिए आप अपने पास खुद, दिस हैपेंस। सो हम तो जेब में लेंगे, हम उससे कितना दूर रहते हैं, हम नहीं रहते दूर, हमारा ये बिल्कुल लगभग जेब में रहेगा, बाहर है तो सोते समय भी तकिया के नीचे रहेगा। जबकि कोई भी नया फोन आप खोलिए, उस पे लिखा होता है कि इसको हमारी बॉडी से मिनिमम 1.2 मीटर्स की दूरी पे रखना है, मिनिमम 3 फीट हमें अपने आप से दूर रखना है। एंड हमें तो बेड के तकिया के नीचे सुबह अलार्म बजेगा, पहले व्हाट्सएप देखेंगे किसने क्या जवाब दिया। सो ट्राई कीपिंग मोबाइल्स आउट ऑफ योर बेडरूम्स। बाय अलार्म क्लॉक्स। ट्रू। That's a good reason. अलार्म है उसमें तो अलार्म बजेगा, फिर कौन उठ के दूसरे रूम में बंद करने जाएगा। बाय अलार्म क्लॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल एज मच एज पॉसिबल। अभी एक और चीज होती है, मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है रेज दिस इशू, हम मोबाइल गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज करना इज एन ऑफेंस, और स्टैटिस्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 400 टाइम्स आपका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इट्स वेरी डेंजरस फिगर, 400 टाइम्स मींस वेरी बिग टाइम्स। और एक छोटा सा डिवाइस आता है, कहाँ है, मेरे पास भी है, ये ऐसा छोटा सा डिवाइस आता है, आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव सीन। ब्लूटूथ, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, इट इज हार्डली लोकल। You should not have it, na Samyak. You are not authorized to use phone primarily. No, ma'am, my father है. It's a Bluetooth headset. Bluetooth headset. 200-400 रुपए से 1,500-2,000 का भी आता होगा, लेकिन it starts hardly with $500. हाँ. और एक बार का फाइन कितना है? 5,000. जी. And people are willing, मतलब they don't they understand कि इतना सा device is so, मतलब पुलिस से भी बचा देगा, और danger other threat से भी बता देगा। इतना छोटा सा device है, one should use it. It will also help you to keep away from mobile. At least to some extent, rather than just touching it to your ear or head itself. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको अपना वे आउट ढूंढना है। अगर आपका काम पूरे तरह से फोन पर चल रहा है, आपकी स्कूल फोन पर चल रही है, तो एटलीस्ट सी टू इट की उसके बाद मैंडेटरी कंपलसरी, जब भी आपको लगे मैं फोन को हाथ लगाऊं तो पूछना है क्या काम है मुझे, कंपलसरी है क्या, नहीं है ना, छोड़ो। Correct. Start exerting this. Yeah, like definitely. This is good method. You have to. Yeah. Otherwise, I have having some cases जहाँ पे बच्चों ने मोबाइल के लिए पेटीएम से एप्पल ऑर्डर कर दिए, पापा के चेक बाउंस हो गया, तब पता चला कि अरे इसने तो मोबाइल, मतलब ये अब समझ लीजिए एडिक्शन के लेवल तक जा रहा है। Yeah, it is going above head. And there are de-addiction center for mobile and internet. One center is opened in Bangalore, one center is open in Mumbai, one is soon to open in Pune, and मुझे इच्छा तो नहीं है, लेकिन नागपुर में भी खोलना चाहिए या खोलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं।
दिस लास्ट ईयर 1 full year हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों को काउंसिल किया जो 10th में मेरिट आए थे 92-94%। पापा बड़ा खुश, मेरा बच्चा मेरिट आया, बहुत ही होशियार है। बेटा क्या चाहिए बोल, तेरी इच्छा क्या है? पापा मोबाइल। अरे बेटा कुछ भी। कितने लाए 12th में? 42। 42%। Only 94 वाला बच्चा 42% पे आया विथ मोबाइल। मोबाइल। So understand how it is। बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया ना। बर्बाद, everything। मेरिटोरियस बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया। 42 लेके क्या करने वाला है वो? जी। So understand how it can ruin you physically, mentally, intellectually, career wise, every ways। So आप प्लीज ये स्क्रीनशॉट को कैप्चर करिए, अपने आप पे चेक, क्रॉस चेक करिए ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है। सो प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। आपसे नहीं हो रहा, आई हैव टोल्ड यू सर्टेन स्मॉल टिप्स जो आपको करनी चाहिए, दैट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं आपसे ऐसा नहीं हो रहा है या फिर somehow you are not able to deal with it, we are there to tell you how to get through it। So please do it। और आज का चैलेंज I have not forgotten, everyone is to keep away from mobile whatsoever। कल सुबह के पहले फोन नहीं देखेगा कोई भी। मैम ठीक है? Ma'am, I want to tell that, ma'am, because of this radiation, birds are also dying, and for this, one movie has also came 2.0. Right, but अभी वो proven facts नहीं है, लेकिन yes, we can see that what we call house sparrow दिखती थी। हम छोटे थे तो बहुत दिखती थी house sparrows। हाँ, sparrows बहुत दिखती थी। I'm crow। अभी sparrows are not being seen not being nowadays। seen। Yeah। And I don't know, no one has maybe studied or something, but it is postulated maybe mobile radiation are actually killing them or whatever। And even migrant birds may mobiles are mobile tower and radiations are misguiding them maybe। So it is also getting more and more harmful for economy nahi ecology, ecologically। Ma'am, I have seen in Google, I have asked in Google, what happens is that radiation keeps on the eyes of birds, and the eyes in the birds look like a rainbow type and color mixing, and because of that they can't see where they have to go, and they means their direction, they get disoriented and misguided because of this। Yes ma'am। So I think you have got all the reasons to control it in a best possible way। Dipali, you're there? So any questions? Anyone wants to ask any question in any form? Excuse me, madam। Yes। What to do if we are staying away from phone, mobile, but if we are doing some sort of business or but situation is like we are connected with this our mind is connected in such a way that if we are aware, if we are easily going to keep it aside, but our minds take us to this that वो बेचैनी होती है कि I want to that surprising thing, what is something going to be surprise for me in this। Yes, that is the factor। No, social media का catchy factor वही है ना कि there are something new, what's new। और वो न्यू जो है वो हमें सही में जो रियल दुनिया है उसमें मिलने वाला है, और हमें ये वर्चुअल दुनिया, हाँ, ये वर्चुअल दुनिया में हमें खींच लाता है। So that's actually is the element, वो spices है उस device की और उस services की कि आपको बस चिपकाए रखना है। हाँ, गेम्स का होता है, कैंडी क्रश का होता है, पबजी का होता है, अरे और सो दैट और वाला जो चीज है ना वो खत्म नहीं होता है। सो रियली थिंग्स आर गेटिंग टू द बोथ साइड्स। हम खत्म हो जाते हैं।
सो प्लीज आप इस पर अपने आप को ओवरव्यू करें. अगर आप चाहे तो we can held up another session altogether, but that could be more specific where we people working over certain elements, implementation of mobile control per se. So आपको लगता है तो we can define one more session where we are actually intervening and guiding you to withdraw. withdraw from लिटरली this. जो शराबियों को जैसे नहीं कि शराब से दूर रखना ही एक तरीका होता है. Getting rid from this, So it's like addiction. आपको अच्छा नहीं लगेगा ये वर्ड addiction, लेकिन addiction. yes, No, you आप are 2 साल का agreed. बच्चा देखिए, 80 साल का बुजुर्ग देखिए, all are stuck to the screen. So please activate screen timer, तब आपको तो पक्का पता चल जाएगा. और आप अपने आप पर चेक करिए कितने देर तक दूर रह सकते हो. मुझे ऐसा क्यों होता है कि इसका एक ही अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन है कि जब भी ये मोबाइल हमें क्रेव करे, कुछ भी हो कि भाई हमें पकड़ के रखे, we have to go out in the public for walking or somewhere in garden. Divert, staying away and diverting yourself. इसीलिए what I want you to make a routine is, means everyone, कि जैसे अभी सुबह उठे अलार्म बंद करने के बहाने से जैसे हमने फोन हाथ में लिया तो हम ऑटोमेटिकली स्टार्ट गोइंग टू दी अदर स्क्रीन्स कि हाँ व्हाट्सएप में क्या हुआ, फेसबुक में क्या हुआ, कल मेरा क्या हुआ, स्टेटस किसने देखा, ये चालू हो जाता है ऑटोमेटिक. बिजनेस होता है उसमें भी कोई ऑर्डर तो नहीं आ गया. बस वही सुबह उठे बराबर सीरियसली, इफ एनीथिंग हैज रियली कम, आई गोइंग टू वर्क इट आउट. अंटिल आपका बहुत ओवरसीज है, कोई कनाडा में बैठा तभी आप उसे कुछ ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है. बट इसीलिए विड्रॉइंग में मैंने जैसे बोला, बाय एन अलार्म क्लॉक, कीप मोबाइल इन अनदर रूम. I hope so. Lots of persons who are attending here maybe have alarm, and including me. I also use alarm only. I used to wake up at 5 to 6 o'clock morning, but due to this this mobile usage, I have been waking up at 7 or 8 o'clock daily. And I agreed with it. I admit that this is really. लोगों की तो ये भी हैबिट हो गई है कि जब तक नींद नहीं आती तब तक फोन लेके बैठे रहेंगे. हाँ जी, सही है. और ऐसे नींद भी ऐसे आ जाएगी जैसे ऐसे वो ऐसे सोचते हैं कि मैं भी. हाँ, वो जैसे नींद भी अपने आप ही आ जाएगी, उसके लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं करनी है. Not to try. But do this thing. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि it is disturbing, distracting, चलो नींद नहीं आ रही तो चलो फोन में ही देख लो, तो do one thing कि सबसे पहले आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए. उसके बाद में फोन बेडरूम में नहीं होना चाहिए. अलार्म बजना चाहिए. इफ यू रिक्वायर टू बी गेटिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो हैव एन अनदर वेज ऑफ अलार्म. आजकल स्मार्ट बैंड वगैरह आते हैं. और जी और उसके साथ वो ऑन ऑटो ऑफ ऑटो ऑन भी ऑप्शन है मोबाइल में. हाँ, जो अपने आप ही ऑफ हो जाता है. किसी और रूम में अगर हो तो डेफिनेटली ऑटो ऑफ हो जाने दे उसको, यानी टच नहीं करना है उसको, उससे दूर रहना है. दूर रहना है. स्टार्टिंग के सुबह के रिचुअल में आई डोंट थिंक मोबाइल इज रिक्वायर्ड टिल यू आर एक्चुअली. ऐसा नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है. मॉर्निंग पे भी उठेंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा, आप चेक ही करेंगे पहले व्हाट इज समथिंग गुड न्यूज़ फॉर मी. इट इज इन योर हैंड, देन आप स्क्रीन टाइमर ईच टाइम व्यू देखिए. आप आधे घंटे के पहले तो नहीं छूटता जी. तो वो क्या होता है कि हमारे जब दिमाग में वो चलता है ना कि चलो कुछ अच्छा आने वाला न्यूज़ है कुछ, तब होता ही नहीं है. और जब हम उससे बोर हो जाते हैं ना, जब सही में हम उससे हो जाते हैं कि फेड अप हो जाते हैं, तभी आता है. इसलिए वो वापस हमें हुक करता है कि चलो आ जाओ. नहीं, एक और बात बताती हूँ. ये पहली बात है कि ये उसको जब आना होता है ना तभी आता है जी, तभी आता है. आप चेक करके क्या कर लोगे जी. और एक हैबिट बताती हूँ एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न. जैसे ये तो सुबह का हो गया कि यू आर नॉट सपोज टू टच मोबाइल इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. उसके बाद में जैसे अभी चलो इम्पोर्टेंट तो है ही अपना खुद का, तो आप एक इंश्योर करिए कि मोबाइल जो है के सोशल मीडिया चेकिंग के एक टाइमिंग फिक्स रखें. मॉर्निंग
में आपने सपोज ऑफिस जाने से पहले देख लिया 9 बजे, फिर दोपहर में लंच के टाइम पे 2 बजे देख लिया, ऑल्दो नोबडी इज वाचिंग, बट आपको खुद को ध्यान रखना है कि नहीं मैं दोपहर में देखूंगा और एक बार रात में देख लूंगा, दैट इज इनफ। हाँ, ये माइंडसेट करना बहुत ये स्ट्रांगली माइंडसेट करना है कि ये आई एम नॉट माइंडसेट गोइंग टू करना। गो। या बट इन दिस टुडे अभी के टाइम में, इन दिस टुडेज वर्ल्ड टाइम, एंड आल्सो विद दिस लाइक दिस इतना ग्रेविटेशनल जो है ये इसका जो मोबाइल का खिंचाव है, उसमें हमारा ध्यान और हमें माइंडसेट सेट करना वो भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो माइंडसेट भी गायब हो जाता है। वो तो करना पड़ेगा, वरना यू बी रेडी, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर आप ये प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन भी बच्चे हैं तो पढ़ाई के लेवल पर, बड़े हैं तो यू नो बिजनेस या जॉब के में परफॉर्मेंस की लेवल तक, आप अगर आपने मोबाइल, आप समझ लीजिए कि आप अपने पोटेंशियल का 50% ही आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने मोबाइल को कंट्रोल करना सीख लिया तो देन यू विल सी कि आपकी एनर्जी भी बढ़ गई है और आपका टाइम और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया, बिकॉज आपका दिमाग डाइवर्टेड नहीं है। एग्रीड, सही में। सो यू हैव टू रियली वर्क ओवर दिस फंडामेंटल्स। या एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम मोबाइल से निकले, फोन से निकले, कुछ डिसीजन लेने के लिए जो हमें विल पावर होता है, वो विल पावर को भी ये मोबाइल हानि करता है। हमारे विल पावर जो स्ट्रॉन्ग नेचुरली जो कुदरत ने बनाया है कि ये अपने आप होने ही लगता है, इंसान उसी ढांचे में चलने लगता है। ये मोबाइल क्या करता है कि इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है, ये करना है या नहीं करना है। So, do you agree? Because of you are not able to focus. Do you agree with this? So it may be because you are not able to focus. No, it is not that I am not able to focus. I am able to focus. I am able to set my mind, but this all stuff makes this makes decisions making में interfere कर रहा है, ऐसा आपको बोलना है। Lousy हो जाते हैं हम। It is draining you out, ना? Yeah, draining it. Yes. So please get motivated for it. I don't think it's very difficult. Yeah. Staying away is the best solution. और जितना important हमने मोबाइल को बना दिया अपनी लाइफ में, उतना important वो है नहीं। So please be watchful and mindful. हमारा गुलाम है वो डिवाइस, हमने हमारी सुविधा के लिए बनाया है, तो आप उसके गुलाम मत बनिए। आपको उसको कंट्रोल में रखना है, आपको उसके कंट्रोल में नहीं रहना है। सो प्लीज बी वॉचफुल इफ दिस इज हैपनिंग, प्लीज वर्क इट ओवर, अदरवाइज वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड इसी सीक्वेंस में I'd like to tell कि next week most probably we would be coming up with the another topic of the series, that is stress management. सुसाइड, सुशांत की सुसाइड है कि नहीं, बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन सुसाइड की इंस्टेंसेस अगर आप देख रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर में कम से कम सिटी लाइन में ही 3 तो मुझे दिख जाती कि 3 सुसाइड्स तो हुए हैं रोज के, उससे ज्यादा होते होंगे कई गुना इन वन सिटी, आई एम टेलिंग। सो here really otherwise also pandemic has given different people a different reason to be stressful, but you know, as long as you are alive you can do any and everything. So we have decided this topic, we had been deciding this topic to take up many a times, but this time finally we are going to take up this topic on Saturday. Very the details would be coming to you very soon on your WhatsApp numbers, messages, yeah. So please join it and also forward and encourage more people to join it, because we think that more and more people need to know that they are stressed. We will tell how to know that you are stressed, how that stress is interfering or disturbing or destroying you, and what is that gray line जो stress से suicide S से S तक जाती है, वो लाइन को हमको काटना है। तो वो लाइन जब तक दिखेगी नहीं, देखो सुसाइड सुनना भी नहीं चाहता कोई, बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन करना बहुत चाहते होंगे लोग शायद, तभी ये स्टैटिस्टिक्स अभी रेज हुए हैं ट्रिमेंडसली हायर
quantum में. So we Yeah. want to make people understand that journey of S to S. Yeah. So please encourage more and more people to join this. We'll be sharing with the details of it very soon. So all of you please join it. And one more stress is Definitely. again we have shared कि एक और तो stress का दाता है ये मोबाइल, so उसको भी control कर लो, बाकी stress को भी देख ही लेंगे, ठीक है? Absolutely. Yeah. So Absolutely. anyone has any issues, any questions, anything that has to be clarified? Anyone has anyone to ask than to tell? So anyone has any question? Sushil sir? I can see Mr. Raju, Sumit, Swapnil, Bharti, Asit, Mangala, Mr. Nagrale, Jitendra, Kalpana, Sid. So I hope you have understood the issue and its importance, and also about the forthcoming webinars issue. So let us work it out. We can do it. About this seminar, if there are something more points, ideas you can share in 2 or 3 lines, please can you just, which is more fertile for us. Regarding which point? This About mobile webinar. only, yeah, which can active us more about inner way. See, सबसे पहले तो सिंपल है कि you have to identify कि आप कौन से लेवल पर हैं. तो screen timer will tell you कि आप कौन से लेवल पर हैं. Second, 2 things will tell you very clearly what is happening. Yeah. If your screen timer is going beyond 3 to 4 hours in any condition, means it is going excessive. If you can't stay away from your mobile more than 2 hours, more than 2 hours, ज़्यादा हो गया, more than 1 hour even, then it is really stationing. And उसके बाद में, even if it is out of your sight, you're not able to keep out of your mind, irrespective of age. 3 alarms should be आपके दिमाग में उसकी घंटी बज जाने चाहिए कि ये ठीक नहीं है. This is out of line all things. 3 bottom lines हैं कि ये 3 चीजें अगर आपके हो रही है तो you have to be very alarming, and it has to be very serious as far as kids are concerned. Definitely. All right? Yeah, appreciate. So, anyone has any other question? Sushil sir, shall we conclude? Kalpana ma'am, you want to say something? No, ma'am. Okay. So I hope everyone has got a wonderful time and wonderful information also regarding the very our own खुद का अपना टाइम बम, एटम बम हमारे हाथ में है, बस उसको सही ढंग से यूज करो. It will take you to very high levels. That's it. Okay? So छोड़ना नहीं है, उसको कंट्रोल में यूज करना है. Okay? Okay, ma'am. Definitely. Chalo, all the best, and do join us for the next webinar. Yeah, and please take some do regular daily basis of some other topic of webinar. It would be so good to use this mobile in this manner. Yeah, very true. But daily conducting a webinar is a tough thing for us. मैं सबको सब सुन सके ऐसे कहता हूँ कि आप डेली आप सेमिनार कुछ ना कुछ टॉपिक पे रखें, भले आधे घंटे का हो, पर ये बहुत अच्छा रहेगा. कुछ अच्छी टॉपिक छेड़े आप, so it's really going to heal our mind. Yes, definitely sir, but practically it is not possible. But yes, we will share our YouTube link where we have already uploaded various things for your referral. So आप उसका एक daily dose देखिए. फिर से आप मोबाइल से पीछा छुड़ाने के लिए रोज आधा घंटा करेगा और एक वेबिनार, मतलब people have a good reason to be on mobile. मैं ऐसा कहूँ आपको, सही कहूँ आपको, तो human communication and human communication से बड़ा satisfaction इस दुनिया में कुछ है ही नहीं. Very true, very true. To person to person chatting with, a person to person connecting with, इससे बड़ा कोई satisfaction नहीं है, क्योंकि इसमें ही पूरी कायनात है, पूरा यूनिवर्स है. Right.
So और ये इसीलिए सारा तो मोबाइल यूनिवर्स बन गया ना हमारा chatting मोबाइल के मोबाइल चक्कर तो हमें ट्रैप कर रहा है. मोबाइल इज ट्रैपिंग आवर Right. यूनिवर्स. Right. It is a net. It is a One web. face to face डिस्कशंस पर ज्यादा ध्यान दे, फेस टू फेस मिलने पर ज्यादा ध्यान दे. ध्यान अभी तो खैर कोरोना है तो कोई ऑप्शन नहीं है. पर आप लेकिन कुछ सोचिए, इफ पॉसिबल हो, we will, what we can do is see एक दिन daily के बाद, contact. एक दिन के बाद या लाइक every week, sorry, daily, but apart from after one day. हम एक काम करेंगे, we will share our YouTube link with all of you. So you people, we will share our Facebook link also. There are wonderful contents about various topics. तो आप उसको आप रेगुलरली देख सकते हैं और कोई भी डिफिकल्टीज हो तो we are there. So I hope you people are enjoyed it because it was an amazing time to be with you. डिफिकल्टीज तो है, पर जब इंसान का साथ छोड़ता है तभी डिफिकल्टी होती है. राइट सही नहीं है. तो डिफिकल्टीज कुछ है ही नहीं. नहीं डिफिकल्टीज तब नहीं है जब कोई दूसरा इंसान आपका साथ छोड़ रहा है. आप अपने आप का साथ छोड़ेंगे तब तो बिल्कुल डेडलॉक है. So, आपको अपना साथ, हमें हमारा साथ खुद का निभाना होता है. हमें हमारे साथ अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ में स्टैंड होना होता है, irrespective of situation, irrespective of whole the world, whatever they are doing or saying, then there is no दिक्कत as long as you are standing with yourself. Yeah, absolutely true, very true. Right? पर So YouTube वीडियो से बेटर रहेगा अभी भी वेबिनार हो. इसलिए मैंने कहा we'll try, but we'll not commit right now. But please focus over our forthcoming webinar next week. We'll be there. We'll think on it, whatever you have spoken. So, but do join our next webinar. Thank you so much. Appreciate. Thank you to all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.